Students, today we'll discuss the valence bond theory in terms of energy consideration. Before this theory, student, we have done VSEPR theory, or VSEPR theory, it basically deals in the, you can say, shape and geometry of the molecules. उस थ्योरी ने कहीं पर भी एटॉमिक ऑर्बिटल्स के ओवरलैप, नंबर वन, एंड नंबर टू रिगार्डिंग द एनर्जी कंसिडरेशन कोई भी डिस्कशन नहीं किया था. सो दिस वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ये दोनों पॉइंट पे डिस्कस करेगी कि ड्यूरिंग द कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन व्हाट इज द concept of energy, and during covalent bond formation what is the concept of overlapping of atomic orbitals. So we can divide this valence bond theory in two parts. First is valence bond theory in terms of energy consideration. Second is valence bond theory in terms of overlapping of atomic orbitals. So in today's lecture beta we will discuss the energy consideration of valence bond theory, that is valence bond theory in terms of energy consideration. So now let us start the theory. First we will discuss the theory, then we will discuss one or two conceptual questions based on this theory. So the first point of the theory says that when two atoms अप्रोच ईच अदर, जब बेटा दो एटम्स एक दूसरे को अप्रोच करेंगे, अगर हम बात करें दिस इज एटम ए एंड दिस इज एटम बी, व्हेन दे अप्रोचेस ईच अदर दिस वे, देन देर आर टू टाइप ऑफ फोर्सेस that came into the existence, that is forces of attraction, number one. Second is forces of repulsion. Clear to all of you? So I will write here, when the two atoms approaches each other, there are two type of forces, attractive forces and repulsive forces. We can also write it them as FA for attraction, FR for repulsion forces. Now the question arises कि ये जो attractive forces हैं किसके बीच में है? This is between the nucleus versus the electron because of opposite charge, and repulsion is between the two nuclei and between the two electrons. So दो टाइप की फोर्सेज आएंगी, वन आर अट्रैक्टिव फोर्सेज, अनदर वन आर रिपल्सिव फोर्सेज. कंसेप्ट इज वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू. ठीक है, अब पॉइंट नंबर टू क्या है, जस्ट सी आउट. पॉइंट नंबर टू सेज दैट इफ forces of attraction greater than forces of repulsion, very important point, if attractive forces are greater than repulsive forces, then these atoms tends to lose energy, इनकी एनर्जी डिक्रीज होगी. क्यों? बिकॉज अट्रैक्शन ऑलवेज लीड्स टू डिक्रीज ऑफ एनर्जी. सो व्हाट हैपन्स बेटा, the energy of these atom decreases, point number one, and these atoms comes closer to each other. ये atoms बेटा एक दूसरे के नजदीक आएंगे this way, they comes closer to each other. Now point number three, when forces of attraction are equal to forces of repulsion, very important, then what happens, these atoms overlaps with each other and form bond. क्लियर? सो एक पॉइंट आएगा जिस पॉइंट पर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन किसके इक्वल होंगी, फोर्सेज ऑफ रिपल्शन. एट दैट पॉइंट दीज एटम ओवरलैप विद ईच अदर एंड फॉर्म द बॉन्ड. एट दिस पॉइंट देयर इज मिनिमम एनर्जी, और बेटा एनर्जी मिनिमम होगा, देन व्हाट विल आई से, देयर विल बी मैक्सिमम स्टेबिलिटी. और यहां बात करना है कि जब भी मैं एनर्जी की बात करता हूं, बी क्लियर हेयर, एनर्जी मीन्स पोटेंशियल एनर्जी. सो बेटा व्हाट हैपन्स नाउ, ये ओवरलैप करेंगे दिस वे, दे विल overlap, and at that point
if I will connect the nuclei of these two bonded atom, then this distance is said to be the internuclear distance, or technically we will say it as bond length. हम क्या कहेंगे बेटा इसको? बॉन्ड लेंथ कहेंगे. सो पॉइंट नंबर 3 क्लियर. एक बार यहां तक समरी करते हैं, फिर आगे स्टडी करेंगे. व्हेन टू एटम्स अप्रोचेस ईच अदर, वी आर हैविंग अ टू टाइप ऑफ फोर्सेस, अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव. व्हेन अट्रैक्टिव फोर्सेस आर मोर देन रिपल्सिव फोर्सेस, then these atom tends to lose the energy, they comes closer to each other, and finally at the point of minimum energy, when attractive forces are equal to repulsive forces, the atoms overlap with each other, and at that time the internuclear distance is said to be the bond length. Now the point number 4. Point number 4 says, जब ये एटम बेटा यहां पर थे तो सपोज इनका एनर्जी आपने मान लिया x, जो भी एनर्जी है यहां पर, क्लियर, और यहां पर जो है वो इनका एनर्जी, क्लियर टू ऑल ऑफ यू. सो ये जो डिफरेंस इन एनर्जी आया है, दिस डिफरेंस इन एनर्जी, दिस इज सेड टू बी द बॉन्ड एनर्जी, और दिस इज आल्सो सेड टू बी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी. सो व्हाट इज दिस? जब एटम फ्रीली एग्जिस्ट कर रहे थे तब उनकी जो एनर्जी थी वो यहाँ पर आप मान लीजिए, इस पॉइंट को हम लेके चलते हैं E1, और यहाँ पर उसकी एनर्जी जो है E2 है. सो बॉन्ड एनर्जी क्या होगी बेटा? E1 माइनस E2. सो बॉन्ड एनर्जी मीन्स जब ये आपका कोवलेंट बॉन्ड बनेगा तो कितनी एनर्जी सराउंडिंग में रिलीज होगी, दैट इज बॉन्ड एनर्जी. ये गैप आपका. सेकेंडली, जब भी कोई बॉन्ड बनता है सम एनर्जी इज रिलीज इन द सराउंडिंग. सो बेटा उस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए भी सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी वी हैव टू सप्लाई, देयरफॉर इट इज आल्सो सेड टू बी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी. क्लियर टू ऑल ऑफ यू? एंड वन मोर थिंग, अब अगर ये और नज़दीक आएंगे, सो न्यूक्लियस और न्यूक्लियस में रिपल्शन होगा, क्लियर, देन एनर्जी स्टार्ट इंक्रीजिंग, और ये दोबारा भी सेपरेट हो सकते हैं. सो व्हाट विल आई राइट? व्हेन these atoms further comes closer to each other, then there are internuclear repulsions. Due to internuclear repulsions, energy again start increasing and the atoms separates. कुछ इस तरह से. अगर और नज़दीक जाएंगे सो हम इसको ऐसे दिखाएंगे बेटा, और नज़दीक जाने के बाद क्या होगा? वी आर हैविंग इंटर न्यूक्लियर रिपल्शंस एंड दीज एटम्स जस्ट सेपरेट्स, एंड फाइनली वही स्टेज आ जाएगी जो पहले आई थी. सो ये आपको ध्यान रखना है कि स्टार्टिंग में इस स्टेज से ऐसे आपको चलना है. क्लियर ना? अब इसको हम ग्राफिकली भी एक्सप्लेन करते हैं. आई विल राइट ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन, जस्ट सी आउट. Graphical explanation. This is potential energy. This is, I will say, internuclear distance. This is a point 0. So just see out बेटा, यहाँ पे हम स्टडी करते हैं. ये ग्राफ हमें कुछ इस तरह से मिलेगा. जस्ट सी आउट, वी विल गेट दिस टाइप ऑफ ग्राफ. ये ग्राफ हमें ऐसे मिलता है. सो जब दो एटम्स, जस्ट बिल्कुल यहाँ से स्टार्ट करते हैं, व्हेन द टू एटम्स दे विल अप्रोच ईच अदर, ये एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं. इस टाइम पे क्या होगा? वी आर हैविंग टू टाइप ऑफ फोर्सेस, अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव. ठीक है? व्हेन अट्रैक्टिव फोर्सेस आर मोर देन रिपल्सिव फोर्सेस, वेरी इंपॉर्टेंट. सो बेटा इनकी एनर्जी डिक्रीज होना स्टार्ट होगी. ये देखिए, दिस वे वी कैन शो दिस इज द डिक्रीज ऑफ एनर्जी. पहले एनर्जी का लेवल यहाँ तक था, अब एनर्जी यहाँ तक आ गई. नाउ इसको थोड़ा सा और क्लियरली कर लेते हैं. दिस वे वी विल गेट. नाउ अब देखिए बिल्कुल, नाउ दिस एनर्जी गोज ऑन डिक्रीजिंग एंड अल्टीमेटली दिस इज द पॉइंट. दिस पॉइंट इज ऑफ मिनिमम एनर्जी. At this point, these atoms overlap with each other. What happens? ये एटम
just a second, properly we can draw. These atoms overlap with each other, and at this point the forces of attraction are equal to forces of repulsion, and at this point we are having minimum energy and we are having maximum stability, or you can say this is a point of बॉन्ड फॉर्मेशन. सो यहाँ पर अगर हम दोनों के न्यूक्लियस को कंबाइन करेंगे, दोनों एटम्स के, दिस इज द न्यूक्लियस ऑफ दिस वन, दिस इज द न्यूक्लियस ऑफ दिस वन, ये जो आएगा हमारा दिस इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, इसको थोड़ा रब करते हैं, दिस इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस इज सेड टू बी द बॉन्ड लेंथ. दिस इज इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस. सो ये इनकी बॉन्ड लेंथ यहाँ तक, दोनों के न्यूक्लियस को आपको कंबाइन करना है. अब अगर फर्दर ये एक दूसरे के नज़दीक आते हैं, जब वन थिंग इज लेफ्ट, एनर्जी की बात की जाए, बेटा जब ये एटम यहाँ पर सेपरेट थे तो इनका एनर्जी ये था दिस वन, और अब इनकी एनर्जी क्या है दिस वन, दिस पॉइंट. सो ये जो डिफरेंस इन एनर्जी है, दिस वी विल सी इट एज, हम इसको क्या बोल सकते हैं, दिस इज बॉन्ड एनर्जी. यानी यहाँ पर जो पॉइंट आएगा आपका, ठीक है, दिस पॉइंट bond energy, you can write like that, bond energy, or it is also said to be bond dissociation energy. ये जो पॉइंट है बेटा आपका, तो इस गैप को भी ले सकते हो या इस पॉइंट को भी ले सकते हो, क्योंकि दोनों वैल्यूज क्या आएंगी आपकी, सेम आएंगी. सो दिस इज बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी. अब देखिए, इफ दीज एटम दे विल फर्दर कम क्लोज टू ईच अदर, तो दोनों के न्यूक्लियस आपस में रेपेल करेंगे, एंड दीज एटम दे विल अगेन स्टार्ट सेपरेटिंग, और इनकी एनर्जी जो है वो इंक्रीज होना स्टार्ट होगी. यहाँ पर एनर्जी क्या थी बेटा, डिक्रीज होना स्टार्ट हुई थी. सो इस ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन को देखिए बड़े ध्यान से. व्हाट वी हैव डन, व्हेन द एटम्स कम्स क्लोजर टू ईच अदर, टू टाइप ऑफ फोर्सेज आर देयर, अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव. व्हेन द अट्रैक्टिव फोर्सेज आर मोर, देन दीज एटम्स दे विल कम क्लोजर, और इनकी एनर्जी डिक्रीज होगी. और इस पॉइंट पर जिसे मिनिमम एनर्जी और मैक्सिमम स्टेबिलिटी का पॉइंट बोलते हैं, यहाँ पर क्या होगी, ओवरलैपिंग. क्लियर टू ऑल ऑफ यू. और इस पॉइंट पर दोनों के न्यूक्लियस को अगर हम कंबाइन करेंगे, देन दिस डिस्टेंस इज सेड टू बी द बॉन्ड लेंथ. और इस पॉइंट पर जो एनर्जी होगी, या तो डिफरेंस ले लो या ये ले लो, डजंट मेक एनी डिफरेंस, दिस इज सेड टू बी द बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी. अब इसमें एक चीज़ और बची हुई है, इसको बेटा रब करते हैं, डाटा काफ़ी मिल गया हम लोगों को. नाउ यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट नेक्स्ट पॉइंट, जो इट इज़ अ पार्ट ऑफ दिस एनर्जी कंसिडरेशन, द स्ट्रेंथ ऑफ द बॉन्ड is directly proportional to, I will say, extent of overlapping. Means more is the overlapping, more will be the stability. और ओवरलैपिंग किसके बीच में होगी, देखो जब हम बोलते हैं कि एटम ओवरलैप कर रहा है, एक्चुअली में क्या है कि जो ऑर्बिटल है वो ओवरलैप करते हैं. और कौन से ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं, जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं विद अपोजिट स्पिन. सो आई विल राइट ओवरलैपिंग इज बिटवीन एटॉमिक ऑर्बिटल्स containing unpaired electrons with opposite spin. सो बेटा ये थ्योरेटिकल हमने डिस्कस किया रिगार्डिंग द वैलेंस बॉन्ड थ्योरी इन टर्म्स ऑफ एनर्जी कंसिडरेशन. क्लियर टू ऑल ऑफ यू. चलिए नाउ वी हैव टू डिस्कस सम थिंग्स. इसको रब करते हैं, नो नीड ऑफ दिस ग्राफ नाउ. फर्स्ट इज आई विल राइट existence of hydrogen molecule, or we can also write it why hydrogen molecule exists. So बेटा सिंपल सा लॉजिक है. अकॉर्डिंग टू VBT, कोई भी मॉलिक्यूल कब एग्जिस्ट करेगा, when forces of attraction are more than forces of repulsion. क्लियर टू ऑल ऑफ यू. ठीक है. अब इसमें जो फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन है वो आपको पता है किसके बीच में होती हैं,
बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन, और रिपल्शन किसके बीच में होती है? बिटवीन द टू न्यूक्लियस एंड बिटवीन द टू इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर? सो जस्ट सी आउट, सपोज हम हाइड्रोजन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1, ठीक है। सो हाइड्रोजन में बेटा ये आपका न्यूक्लियस हुआ। क्लियर? आई विल राइट लाइक दैट, दिस इज द न्यूक्लियस और ये बेटा इसका इलेक्ट्रॉन, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट एटम, आप इसको ए ले लीजिए, इसको बी ए ले लीजिए। नाउ दिस इज द सेकेंड न्यूक्लियस, ये उसका इलेक्ट्रॉन, सेकेंड न्यूक्लियस मीन सेकेंड एटम का, सो इट इज न्यूक्लियाई ऑफ एटम बी एंड इलेक्ट्रॉन ऑफ एटम बी। अब इसमें हमें क्या देखना है? जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है बेटा, इसको अट्रैक्शन और रिपल्शन ये भी दो टाइप की होती हैं। देखिए, द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन एंड फोर्सेस ऑफ रिपल्शन, दीज आर ऑफ टू टाइप्स। ओल्ड forces of attraction and old forces of repulsion versus new forces of attraction and new forces of repulsion. So old forces of attraction या repulsion जो है वो तो विद इन द एटम होती है, ये आपको ध्यान रखना है। विद इन द एटम के बारे में डिस्कस करेंगे हम कि जब एटम अकेला है उसके अंदर जो फोर्सेज है वो ओल्ड फोर्सेज है। जब एटम अप्रोच करते हैं सो वो जो अट्रैक्शन या रिपल्शन वो दूसरे एटम के साथ शो करता है, दैट इज सेड टू बी द new forces of attraction or repulsion, that is between two atoms. So normally according to bond formation हमें इसमें काम करना है, we have to check the new forces of attraction and repulsion, but इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना है कि अगर आपकी, मैं फिर से क्लियर कर रहा हूँ, न्यू फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन जो है वो न्यू फोर्सेज ऑफ रिपल्शन के बराबर हो जाती हैं, सो आपको फिर से कंसिडरेशन में लेना है ओल्ड वाला फैक्टर। तो सबसे पहले क्या चेक करोगे? जब एटम्स अप्रोच करेंगे तो जो उनमें फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होंगी वो होंगी न्यू फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्शंस। अगर इनका नंबर बाय चांस इक्वल आ जाता है तो हमें जो ओल्ड फोर्सेस हैं उनको भी इंक्लूड करना है, और अगर इनका नंबर इक्वल नहीं आता तो आपका काम चलेगा। चलिए हाइड्रोजन का केस देखते हैं। पहले हम स्टडी करेंगे जो ओल्ड फोर्सेस हैं। ओल्ड फोर्सेस कौन कौन सी हैं? दिस इज डॉटेड लाइन से, ये बेटा पहली ओल्ड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अट्रैक्शन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं Fa1। नाउ दिस इज Fa2। ये हैं ओल्ड फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। अब जब ये दो एटम दीज रिपल्शंस भी देख लेते हैं ओल्ड। अगर बात की जाए जो ओल्ड फोर्सेस ऑफ रिपल्शंस की हैं, सो अब एक चीज़ और, ओल्ड फोर्सेस ऑफ रिपल्शंस क्या होंगी? ये जो एटम है इसमें एक न्यूक्लियस और एक इलेक्ट्रॉन है, तो ओल्ड फोर्सेज ऑफ रिपल्शन तो नहीं है। यहाँ पर भी क्या है? एक न्यूक्लियस और एक इलेक्ट्रॉन है, तो ओल्ड फोर्सेज ऑफ रिपल्शन नहीं है। मीनिंग क्या है? हाइड्रोजन के केस में, अगर हम बात करें हाइड्रोजन के केस में, सो वी आर हैविंग ओनली ओल्ड फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन एंड वी आर नॉट हैविंग ओल्ड फोर्सेज ऑफ रिपल्शन। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि रिपल्शन के लिए हमें दो पॉजिटिव चार्ज या दो इलेक्ट्रॉन चाहिए, जबकि हाइड्रोजन एटम में एक ही न्यूक्लियस होता है और एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। अब देखिए, जब ये अप्रोच करेंगे फॉर द बॉन्ड फॉर्मेशन, सो अब हमें चेक करना है न्यू फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन एंड न्यू फोर्सेज ऑफ रिपल्शन। सो पहले हम न्यू फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन की बात करते हैं। ये देखिए बेटा, ये न्यूक्लियस सेकेंड एटम के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। न्यू फोर्सेज को हम कंप्लीट लाइन से शो करेंगे, Fa1, ये न्यू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? और ये न्यूक्लियस इसको अट्रैक्ट करेगा, सो दिस इज Fa2। सो आपकी दो न्यू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ गई। अब रिपल्शन इस न्यूक्लियस और इस न्यूक्लियस के बीच में, सो न्यू फोर्स ऑफ रिपल्शन Fr1, और इस इलेक्ट्रॉन और इस इलेक्ट्रॉन के बीच में, सो Fr2, न्यू फोर्सेज ऑफ रिपल्शन। सो हमारी जो न्यू फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन है, देखिए वी आर हैविंग न्यू टू फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन एंड न्यू टू फोर्सेज ऑफ रिपल्शन। बहुत ध्यान से देखना है, अट्रैक्शन इसके और इसके बीच में, इसके और इसके बीच में, और रिपल्शन इसके और इसके बीच में। यानी जो नई अट्रैक्टिव फोर्स है वो किसके इक्वल है? रिपल्शन के। मैंने कहा था अगर आपकी नई अट्रैक्टिव फोर्सेज रिपल्सिव के बराबर होती हैं, सो हमें ओल्ड फोर्सेज को इसमें इंक्लूड करना होता है। सो अगर मैं ओल्ड फोर्सेज को इंक्लूड करूं, अब ओल्ड फोर्सेज कौन सी ज़्यादा थी? अट्रैक्टिव फोर्सेज। उसको भी चेक करते हैं। ये देखिए डॉटेड लाइंस। सो अगर इस न्यू फोर्सेज में मैं
टू ओल्ड फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को ऐड करता हूं। कौन सी? ओल्ड फोर्सेस। सो 2 ओल्ड फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को मैंने ऐड किया। सो जो टोटल मेरी अब बनी, वी आर हैविंग नाउ, कौन सी फोर्सेस ज़्यादा होगी? अब हम क्या कहेंगे कि फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन आर ग्रेटर देन फोर्सेस ऑफ रिपल्शन, देयरफॉर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल एग्जिस्ट। सो कंक्लूजन क्या हुआ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में कि फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है एज कंपेयर टू फोर्सेस ऑफ रिपल्शन। ठीक है, और आंसर में हमेशा आपको लिखना है कौन सी फोर्सेस? न्यू फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन आर ग्रेटर देन न्यू फोर्सेस ऑफ रिपल्शन। ठीक है, अगर ये दोनों इक्वल आती हैं तो हमें ओल्ड फोर्सेस ऐड कर देनी है। ओल्ड फोर्स ऐड करने के बाद भी डाटा वो न्यू फोर्सेस का ही रहेगा, ये आपको ध्यान रखना है। सो यहां पर क्लियर हुआ? एक बार फिर से देख लीजिए कि जो नई फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन था उनका नंबर इक्वल था। सो हमने ओल्ड फोर्स ऐड किया, ड्यू टू विच जो इस नेट मॉलिक्यूल में, ठीक है, न्यू फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन का जिसमें ओल्ड फोर्सेस ऐड की गई थी, ध्यान कीजिए। ठीक है, तो न्यू फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन नाउ बिकम्स ग्रेटर देन न्यू फोर्सेस ऑफ रिपल्शन। क्लियर? चलिए, तो ये हुआ एग्जिस्टेंस ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। सेकेंड वी विल स्टडी, जस्ट सी आउट, ये लिखा रहने देते हैं, इट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट। फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन एंड फोर्सेस ऑफ रिपल्शन, दीज आर ऑफ 2 टाइप्स। सेकेंड आपके सिलेबस में है नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ He2 molecule, or we can say why helium-2 molecule does not exist. So चलिए बेटा, let us study. So हीलियम का अगर आप एटॉमिक नंबर लिखोगे, द कॉन्फ़िगरेशन इज 1s2. इट हैज 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 प्रोटॉन्स। सो 2 प्रोटॉन्स का मतलब न्यूक्लियस हमने ये एक हीलियम एटम का ऐसे शो किया, और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स E A, ये ए एटम का। सेकेंड हीलियम का भी बेटा न्यूक्लियस B, और ये बेटा EB। चलिए पहले हम चेक करते हैं न्यू, क्योंकि बेटा फर्स्ट तो आपको न्यू से ही चेक करना है। अगर न्यू से आंसर मिल जाए इट्स ओके, अदरवाइज फिर उसकी क्वांटिटी में ओल्ड को ऐड करते हैं, ये ध्यान रखिएगा। दिस इज नॉट गिवन इन एनी बुक। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं। सबसे पहले हम रिपल्सिव फोर्सेस की बात करेंगे। रिपल्शन किसके बीच में होगा? तो या पहले हम अट्रैक्शन की बात कर लेते हैं। सो अट्रैक्शन, ये एक एटम का जो न्यूक्लियस है ये सेकेंड के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, सो F(R) ये अट्रैक्टिव फोर्स, ठीक है, और ये इसको भी अट्रैक्ट करेगा, F(R). यू कैन से बेटा इसको A लिख दिया, अट्रैक्टिव है, F(R) नहीं आएगा। सो ये भी अट्रैक्टिव फोर्स। अब ये न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, सो ये भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और ये इसको अट्रैक्ट करेगा, तो ये भी आपकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो जो न्यू फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है उनका जो नंबर है वो कितना है? 4। बट अगर न्यू फोर्सेस ऑफ रिपल्शन चेक की जाए, सो ये 2 इलेक्ट्रॉन रिपेल करेंगे, Fr, ये 2 इलेक्ट्रॉन भी रिपेल करेंगे, Fr। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ये 2 न्यूक्लियस भी रिपेल करेंगे, Fr। ये इलेक्ट्रॉन और ये देखो डिफरेंट एटम्स के हैं, ये भी क्या करेंगे? रिपेल करेंगे, Fr। और ये 2 इलेक्ट्रॉन भी क्या करेंगे? रिपेल करेंगे, Fr। सो रिपल्सिव फोर्सेस कितनी? 2 न्यूक्लियस के, एक ये न्यूक्लियस के बीच में 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3, देन दीज इलेक्ट्रॉन 4, देन दीज इलेक्ट्रॉन 5। सो न्यू फोर्सेस ऑफ रिपल्शन जो है वो 5 आ गई। अब देखो जो नई फोर्सेस ऑफ रिपल्शन है, इट इज ग्रेटर देन, सॉरी दिस इज ग्रेटर देन न्यू फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। सो नई फोर्सेस से ही हमारा काम चल गया। देयरफॉर वी कैन से helium-2 molecule does not exist। बट एक चीज जरूर ध्यान रखनी है कि अगर आपकी नई फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन नई फोर्सेस ऑफ रिपल्शन के इक्वल आ जाती हैं इन सम ऑफ द केसेस, जैसे हाइड्रोजन में आया था, तो न्यू फोर्सेस में ऑड फोर्सेस को ऐड कर देना है आपको। ठीक है, और वो फिर ऑटोमेटिकली कहलाएंगी क्या? न्यू फोर्सेस। सो ये हमने 2 मॉलिक्यूल का स्टडी किया। नाउ वी आर हैविंग वन मोर डिस्कशन, दैट H2 exists but H3, H4 does not. It is quite simple.
हाइड्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन होती है 1s1, हाइड्रोजन हैज 1 इलेक्ट्रॉन एंड इट कंप्लीट्स इट्स डुप्लेट, वो अपना डुप्लेट कंप्लीट करता है। सो बेटा ये एक हाइड्रोजन, ये एक हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड से क्या होगा, इसका भी डुप्लेट कंप्लीट हो गया हाइड्रोजन का। क्लियर। अब जब हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट हो गया तो उसकी आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आए, 2 इलेक्ट्रॉन। तो H3 का मतलब अब ये 2 हाइड्रोजन कंबाइन हो चुके हैं। अगर मैं यहाँ 3rd हाइड्रोजन लेके आऊँगा या 4 हाइड्रोजन लेके आऊँगा तो किसी भी तरह का बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होगा, बिकॉज हाइड्रोजन कंप्लीट्स इट्स डुप्लेट बाय कंबाइनिंग विद 1 हाइड्रोजन। एक हाइड्रोजन से कंबाइन करके डुप्लेट कंप्लीट करेगा, उसके बाद चाहे आप कितने भी हाइड्रोजन लेके जाओ बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होगा। देयरफॉर वी कैन से H3H4 डज नॉट एग्जिस्ट। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। सो स्टूडेंट ये हमने देखा दैट इज द एनर्जी कंसिडरेशन ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। इसमें आपके सिलेबस में जो कंपाउंड्स है, हाइड्रोजन का एग्जिस्टेंस था, हीलियम का था कि हीलियम एग्जिस्ट क्यों नहीं करता। तो कोई भी मॉलिक्यूल कब एग्जिस्ट करेगा, व्हेन द फोर्सेज ऑफ रिपल्स अट्रैक्शंस आर ग्रेटर देन द रिपल्शंस। कोई एग्जिस्ट कब नहीं करेगा, व्हेन द फोर्सेज ऑफ रिपल्शंस आर मोर देन फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। सो स्टूडेंट दिस इज ऑल अबाउट द energy consideration of valence bond theory. This valence bond theory has one more consideration in which we have to study about the overlapping of atomic orbital कि कौन से ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे, एस एस ओवरलैप करेगा, एस पी ओवरलैप करेगा, पी पी ओवरलैप करेगा या पी डी ओवरलैप करेगा। सो वो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का नेक्स्ट लेक्चर होगा जिसमें हम स्टडी करेंगे ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। सो दिस इज ऑल अबाउट द एनर्जी कंसिडरेशन ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। दैट्स ऑल।